Till now, we have studied about the analysis of single phase AC circuits. In this lecture, we are going to learn a bit about three phase AC circuits. So, we'll start with the definition of a three phase circuit and then we'll go to the need of having three phase circuits. Okay. So, when we are talking about a circuit, we know that there is a source which is basically converting power, energy from one form of another to one form to electric form, and we have a load which is converting energy from electric form to another useful form, right? So when we are talking about a three phase AC circuit, we will have a three phase source and a three phase load in it. Okay, and more appropriately, our discussion will be on a balanced three phase source and a balanced three phase load. So basically, it will be a balanced three phase AC circuit. So let us define what is a balanced three phase load source first. We know that the sinusoidal voltage that is produced by a single phase source is given as Vm sine omega t. Here I am considering the phase angle to be 0. Now, if I have an integrated source in such a manner that it is synthesizing three different voltages, uh, let me show it like this. So I have this integrated source here, which has three different uh, AC sources. Actually, they are operating simultaneously. So these three voltages are such that their amplitudes are equal, right? So I'm naming them uh, differently so that we can make proper differentiation. So I'm calling this terminal as R, this terminal as Y, and this terminal as B. This terminal, I'm calling it as N. So this potential difference, I'm writing it as VRN. This potential difference, I'm writing it as VYN. And this potential difference, I'm writing it as VBN. So this is a source with the three simultaneous voltages which are marked as VRN, VYN, and VBN. So if the first one of them is Vm sine omega t, then the second will have the same amplitude, that is Vm, the same angular frequency, that is omega, but this voltage is lagging behind the first one by an angle of 120 degrees. So the expression for the second voltage Vyn will be Vm sine omega t minus 120 degrees. Similarly, the third one, which we are calling as Vbn, will have the same amplitude, that is Vm, same frequency, that is omega, but Vbn is lagging behind Vyn by another 120 degrees. So the phase angle of Vyn was minus 120 degrees. So Vbn is further lagging from it by an angle of 120 degrees. So the phase angle of Vbn is minus 240 degrees. And since we know that the period of a sinusoidal function is 360 degrees, so I can write it as Vm sine this whole angle, which is omega t minus 240 degrees plus 360 degrees, right? Why I'm writing it so? Because we know that sine of theta plus 360 degrees is equal to sine theta.
So that 360 degrees is the period of this sinusoidal function. So this expression for VBN becomes Vm sine omega t plus 120 degrees. Now, if these three voltages are in this fashion, which means that they have same amplitudes, they have same angular frequency, and uh, they have a phase difference of 120 degrees with each other. This type of a source is known as a balanced three-phase source. If any one or more of these conditions are not fulfilled, then this becomes an unbalanced three-phase source, which means that if the peak value is different, or if the angular frequency is different, or the phase angle between these three voltages is not 120 degrees, then it will make the system as an unbalanced three-phase source, right? So uh, I am showing these voltages with the help of a phasor. So I have a balanced three-phase source here, and this source, if you have noticed, happens to be a star connected source, right? I have shown these three individual sources in star connection, and they can be in a delta connection connected fashion as well, right? So currently we are discussing about star connection. So this is RYB, this is N. This voltage I had marked it as VRN. This voltage I had marked as VYN, and this was VBN, right? So now we know the expression for these three voltages. VRN is equal to Vm sine omega t. The phase angle is considered to be 0 here. VYN has the same amplitude, same angular frequency, but it lags behind VRN by an angle of 120 degrees. And finally, this voltage VBN is equal to Vm sine omega t. It has the same amplitude, same angular frequency, but it leads the voltage VRN by an angle of 120 degrees. Or you can say that it lags behind VYN by an angle of 120 degrees, right? So if we draw these three voltages in terms of phasors, the phasor representation of the first voltage VRN will be capital V RN with a bar, because this will be a complex number. The RMS value, I'm representing it as capital V. The phase angle is 0 degrees here. This capital V is the RMS value, which means that it is equal to peak value divided by root 2. Similarly, the second voltage VYN has the same RMS value. The phase angle is minus 120 degrees. And the third voltage, which is VBN, the phasor representation will be VBN bar, same RMS value, but the phase angle is plus 120 degrees. So these three voltages can be represented as expressed as phasors in this manner. Now, if I make a phasor diagram for these three voltages, then I can easily do it because I now know the expressions in terms of complex numbers. So I make uh, four quadrants here. The angular frequency is same, so I'm writing omega here. The first voltage has phase angle equal to 0, so this is the first phasor, and this is VRN. The second phasor VYN has an angle of minus 120 degrees, so it will come here. The RMS value is same, so the length of this phasor will be same as that of VRN. So this is VYN. The third phasor has an angle of plus 120 degrees, so it will come here, the second quadrant, and this is VBN. So the angle between these
three phasors with one another is equal to 120 degrees. So this is the phasor representation of a balanced three-phase source. Here it is assumed to be connected in star. The same source could have been a delta connected source also, right? So I'm showing a balanced three-phase source which is delta connected. So it looks like this. So I'm drawing three individual sinusoidal sources and they are connected in a delta fashion. So these three terminals are the terminals which can be used to power a three-phase load. Now the question may arise as to why I am using these three letters R, Y and B here. तो हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि ये तीन वोल्टेजेस ऑल्दो उनके आरएमएस वैल्यूज, उनकी पीक वैल्यूज, उनके एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन उनके फेज एंगल्स अलग अलग हैं। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए जब हम एक थ्री फेज सोर्स से जब हम वायरिंग करते हैं तो हम तीन अलग अलग रंग के वायर्स यूज करते हैं. वन इज रेड, वन इज येलो एंड थर्ड वन इज ब्लू. इसीलिए हमने यहाँ पर ये तीन लेटर्स आर वाई बी यूज किए हैं, क्योंकि अलग अलग फेज के लिए नॉर्मली हम अलग अलग कलर के वायर्स यूज करते हैं सो दैट वी नो कि वहां पर जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो किस फेज पे मिल रहा है, फेज एंगल पे मिल रहा है, राइट. तो जिस तरह से हमने एक थ्री फेज सोर्स को हमने डिफाइन किया है एज अ बैलेंस्ड थ्री फेज सोर्स, उसी तरह से एक बैलेंस्ड थ्री फेज लोड भी होता है. हमें मालूम है कि एसी सर्किट्स में लोड को हम इम्पीडेंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. इम्पीडेंस इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक तो उस लोड का एक रेसिस्टिव पार्ट है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, कैपिटल आर, और दूसरा उस लोड का जो रिएक्टिव पार्ट है which comprises of all the resultant of all the capacitances and inductances in that load. इसको हम रिएक्टिव पार्ट कहते हैं. तो दिस इज रिप्रेजेंटेड विद एक्स. सो इंपीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर प्लस जे एक्स से, राइट. हियर जे इज रूट ऑफ -1. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट the resistive as well as the reactive part of a load, AC load, in terms of a combined effect, that is impedance, right. So when you have a balanced three phase load, it can be a star connected load or a delta connected load, right. So I am on the left, I am showing a star connected load. ये जो मैं boxes यहाँ पर represent कर रहा हूँ, ये boxes refer to the impedance, right. So this is a star connected three phase AC load, and जो राइट साइड में मैं शो कर रहा हूं दैट इज अ डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज AC लोड. सो दिस इज अ डेल्टा कनेक्टेड लोड. सो यहां पर भी हम इन तीन टर्मिनल्स को RYB से शो कर सकते हैं. कई बार आप लैब्स में देखोगे मोटर्स में हम RYB, मोटर इज ऑल्सो लोड, तो वहां पर हम RYB की जगह UVW भी यूज करते हैं फॉर लोड. सोर्स के लिए तो ऑलवेज वी यूज RYB. Okay, so this load is called a balanced load when these impedances in their complex form, they are all equal. हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों साथ साथ में इक्वल हो, राइट. तो यहां पर भी ये तीनों जो आर्म्स हैं इस लोड की, उनका जो इम्पीडेंस है इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म, they should all be equal to one another, right. और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो एक अनबैलेंस्ड लोड है.
So an unbalanced three-phase load will be such that the three arms of that load, इनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर सिर्फ इनके रियल पार्ट यानी रेसिस्टिव पार्ट इक्वल है तो भी ये बैलेंस्ड लोड की कैटेगरी में नहीं होगा, राइट। सिमिलरली फॉर अ डेल्टा कनेक्शन, अगर इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल नहीं है, Z1, Z2 और Z3 है, तो हम कहेंगे कि एक अनबैलेंस्ड लोड है ये। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट three-phase balanced load and a three-phase unbalanced load, and before that we discussed about a three-phase source, both balanced and unbalanced. So both source and load can be star connected or delta connected, right? Now the question arises, what is the need? Why do we need a three-phase circuit? इतना कॉम्प्लिकेशन करने की हमें जरूरत क्या है? तो जब हम सिंगल फेज सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट phenomenon हमने नोट किया when we were studying about the power in single phase circuits. वहां पर हमने ये देखा था कि जो पावर था, इंस्टेंटेनियस पावर, वो इस फॉर्म में था vi cos phi minus vi cos 2 omega t minus phi. यहाँ पर कैपिटल V और कैपिटल I जो है वो वोल्टेज की RMS वैल्यू और करंट की RMS वैल्यू है, और ये जो phi है दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द लोड, राइट। और इसको जब हमने प्लॉट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें दिख रहा है कि ये एक जो पावर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट इज चेंजिंग। और साथ में हमने ये भी देखा था कि जब हम इसको एक रेसिस्टिव लोड के लिए जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये जो पावर है दैट रिपीटेडली गोज टू जीरो, राइट, इट टचेस जीरो, यानी कि बार बार ऐसे इंस्टेंट्स आते हैं एक साइकिल में 2 बार जब जो पावर है जो सप्लाई हो रही है सोर्स से लोड की तरफ वो जीरो हो जाती है। तो नॉर्मली जब हम जो लोड्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अ फैन, वहां पर हमें ये फ्लक्चुएशंस दिखेंगे नहीं। पावर जीरो हो रही है मतलब जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज आल्सो गोइंग टू जीरो, यानी कि वो एक इंटरमिटेंट पावर है। लेकिन हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 100 हर्ट्ज है, राइट, 2 ओमेगा है। 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के कारण हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते एंड इट डज नॉट अफेक्ट द लोड ऑल्सो। लेकिन अगर ये कोई बहुत भारी लोड है, फॉर एग्जाम्पल एक आटा चक्की की मशीन है, और उसमें अगर आप इनपुट पावर बार बार जीरो टच कर रहा है तो द मशीन में गेट स्टॉल्ड, क्योंकि इट इज एम्पावरिंग अ हैवी लोड। तो अगर लोड बहुत हैवी है और पावर जीरो टच कर रहा है तो मशीन विल गेट स्टॉल्ड। सो दिस इज, वी डोंट वांट दिस टू हैपन, राइट। हम ये नहीं चाहते हैं कि पावर बार बार जीरो टच करे। So when you see a three-phase AC circuit, for example, I have a three-phase load here, स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो, तो अगर हम इंडिविजुअल फेज की पावर्स देखें, राइट, सो अगर मैं हर फेज की पावर देख रहा हूं, पावर्स इन इंडिविजुअल फेजेस, तो एक फेज में मुझे पावर दिख रही है P, वोल्टेज यानी Vm साइन ओमेगा टी, और करंट यानी Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट। ये हमने सिंगल फेज में भी इसका डेरिवेशन हमने किया था। सो लेट अस कॉल इट द इंस्टेंटेनियस पावर फॉर आर फेज। वाई फेज में आप इंस्टेंटेनियस पावर देखोगे तो वोल्टेज यानी Vm साइन ओमेगा टी माइनस 120, तो करंट भी
इस ओवरऑल एंगल यानी ओमेगा टी माइनस 120 से फाई एंगल लैग करेगा. सो दिस विल बी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्रीज माइनस फाई. और जो थर्ड फेज है उसका जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा दैट विल बी वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्रीज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्रीज. ये ओवरऑल एंगल है वोल्टेज का और करंट उससे फाई एंगल लैग कर रहा है यानी ओमेगा टी प्लस 120 डिग्रीज माइनस फाई. तो ये तीन जो पावर्स हैं अलग अलग फेज के वो इस तरह के होंगे. तो हम इंस्टेंटेनियस थ्री फेज पावर जब देखेंगे, instantaneous three phase power which is being supplied to the three phase load, वो पावर क्या होगा? इन इंडिविजुअल पावर्स इंस्टेंटेनियस पावर का सम होगा. राइट. सो दिस विल बी Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये फर्स्ट फेज के लिए था, प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्रीज वोल्टेज का फेज एंगल, और करंट के लिए वो था साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्रीज माइनस फाइव. राइट. प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्रीज, ये वोल्टेज का फेज एंगल, और करंट का फेज एंगल होगा साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्रीज माइनस फाइव. और अब हम इन तीनों को जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेट अस ऐड देम. So if we simplify them, like I'm dividing here it with 2 and multiplying 2 to all the terms, and I'm using sine A sine B equals cos A minus B minus cos A plus B, right? This is what we had done for the analysis of single phase power also. जब हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे टर्म्स को, पहले हमने इस तरह से एक्सपैंड किया और फिर उनको हम ऐड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है इट कम्स आउट टू बी 3vi cos phi. Right now compare this with the expression for power that we had got for single phase circuits, right? So here जो power है instantaneous power है that comes out to be 3vi cos phi. Now this term is not dependent on time, so we see that the power is constant. So single phase circuit में हमें जो problem हो रही थी कि power was touching zero रिपीटेडली, वो हमें थ्री फेज सर्किट में नहीं प्रॉब्लम हो रही है. हमें बैलेंस थ्री फेज सर्किट में जो पावर है इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज कांस्टेंट. राइट. इसीलिए ये रीजन है, ये पहला रीजन है कि हम जब हमें हाई पावर्ड लोड को फीड करना होता है तो नॉर्मली हम उसको एक थ्री फेज सर्किट से फीड करते हैं. इसका दूसरा कारण ये भी है कि जो वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर है दैट इज बेस्ड ऑन अ मल्टीफेज सिस्टम. So that we will take it up when we'll discuss about electric machines, right? So for the time being, हम बस ये याद रखें कि three phase AC circuits are important because three phase circuit में जो instantaneous power है that is constant, right? It does not touch zero, it does not vary, it is constant with respect to time. Okay, so now talking about the analysis of a three phase circuit, we will mainly deal with a star connected system and a delta connected system. और इसमें हमने सब तरह के वेरिएशंस डिस्कस किए. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वो एक फुल एक सर्किट है तो उसमें एटलीस्ट एक सोर्स होगा और एटलीस्ट एक लोड होगा, राइट? सो वी विल हैव सोर्स, one or more source and one or more loads there, right? So यहाँ पर possibility क्या है? Source can be star connected, the load can also be star connected. Source can be star connected, but the load can be delta connected. The source can be star connected, delta connected, and the load can be star connected.
and the source can be delta connected, the load also can be delta connected. तो ये स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार और डेल्टा डेल्टा ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं. सो वी विल बी डीलिंग अ लॉट विद स्टार्स एंड डेल्टास फॉर बोथ द सोर्स एज वेल एज द लोड. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं यहाँ पर that we should see. So now I have a three-phase component here. This can be a source or a load, right? तो ये जो मैंने डॉटेड सर्कल के अंदर जो मैंने बनाया है, this is a three-phase source or it can be a load. ठीक है. तो अगर ये थ्री फेज सोर्स है या एक थ्री फेज लोड है तो एटलीस्ट 3 कंडक्टर्स होंगे जो यहाँ से कनेक्टेड होंगे. अगर ये लोड है तो ये तीन जो कंडक्टर्स हैं ये अगर ये सोर्स है तो ये तीन कंडक्टर जो है लोड की तरफ जाएंगे, और अगर ये लोड है तो सोर्स से आ रहे होंगे और फिर यहाँ कनेक्ट होंगे. राइट. तो यहाँ पर जब हम एक इस तरह का एक थ्री फेज सर्किट हमारे पास है तो वहां पर अगेन वी आर डीलिंग विद वोल्टेजेस एंड करंट्स, है ना. हम सर्किट एनालिसिस में पढ़ ही यही रहे अबाउट वोल्टेजेस एंड करंट्स. सो हम यहाँ पर दो तरह के वोल्टेजेस और करंट से हम डील कर रहे हैं. एक जो है वो इस ये जो मैंने डॉटेड सर्कल बनाया है इस पेरिफेरी के बाहर वाली क्वांटिटीज हैं. राइट. सो इस पेरिफेरी के बाहर वाली जो क्वांटिटीज हैं उनको हम कहते हैं लाइन क्वांटिटीज. ठीक है. ये थ्री फेज सोर्स या थ्री फेज लोड की पेरिफेरी के बाहर वाली जो भी क्वांटिटीज होंगी यानी वोल्टेजेस और करंट्स उनको हम कहेंगे लाइन क्वांटिटीज. यानी जो वोल्टेजेस होगा उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे लाइन वोल्टेजेस, और जो करंट्स होंगे उनको हम कहेंगे लाइन करंट्स. ये जो मैंने डॉटेड लाइन से जो पेरिफेरी बनाई है इसके अंदर जो हम वोल्टेजेस और करंट्स को हम देखेंगे उनको हम कहेंगे फेज वोल्टेजेस या फेज करंट्स. सो दे आर ऑल फेज क्वांटिटीज. राइट. सो here outside the periphery we have line quantities, inside the periphery we have phase quantities. So we have line voltages and we have line currents. Similarly we have phase voltages and we have phase currents. तो हमें जो लाइन क्वांटिटीज और फेज क्वांटिटीज का जो रिलेशनशिप है वो हमें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा फॉर फॉर अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम एंड फॉर अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम. ओके. तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन लाइन क्वांटिटीज एंड फेज क्वांटिटीज. तो हम यहां पर स्टार और डेल्टा दोनों के लिए ये अलग अलग एनालिसिस इसके लिए करेंगे. राइट. सो लेट अस टेक अप द केस ऑफ स्टार कनेक्शन फर्स्ट. सो स्टार कनेक्शन के लिए मैं यहां पर तीनों फेजेस को यहां मैं शो कर रहा हूं. ये मैंने जो कॉइल बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोर्स या लोड दोनों में से किसी भी चीज को. ठीक है. सो ये मैंने कंडक्टर्स बनाए यहां पर और मैंने यहां पर इनको नाम दिया R, Y एंड B, और ये जो इनके बीच का कॉमन पॉइंट है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं N. राइट. तो मैंने यहां पर एक पेरिफेरी ड्रॉ कर दी इस डॉटेड सर्कल से, और मैंने कहा कि इस पेरिफेरी के बाहर की क्वांटिटीज को मैं लाइन क्वांटिटीज कहूंगा और इस पेरिफेरी के अंदर की क्वांटिटीज को मैं फेज क्वांटिटीज कहूंगा. राइट. सो आई एम फर्स्ट ड्रॉइंग द करंट्स. ओके. सो ये मैंने एक इनकमिंग करंट ड्रॉ किया, कैपिटल आई बार से मैंने रिप्रेजेंट किया. ये साइनसोइडल करंट है और इसको मैं फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर आई बार. ओके. तो ये आर जो लाइन है उससे कनेक्टेड है ये, सो आई एम कॉलिंग इट आई आर. राइट. सिमिलरली ये वाला जो करंट है आई एम कॉलिंग इट आई बी.
और ये वाला जो करंट है आई एम कॉलिंग इट आई वाई। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने आई आर, आई वाई और आई बी जो ड्रॉ किए हैं वो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, दे आर ऑल लाइन करंट्स। ओके, सो आई आर, आई वाई एंड आई बी आर लाइन करंट्स। अब अगर हम पेरिफेरी के अंदर आ जाएं तो हम तीनों फेजेस के लिए जो करंट ड्रॉ मार्क करेंगे वो मैं यहां पर शो कर रहा हूं। तो ये आर एन एक फेज दिख रहा है मुझे, सो इस करंट को आई एम कॉलिंग इट आई आर एन। ये भी एक साइनसॉइडल करंट है, इसलिए मैंने इसको फेजर से शो किया है, कैपिटल आई आर एन बार की हेल्प से, राइट। सिमिलरली ये जो फेज है वाई एन, जो एक फेज है, उसमें मैंने करंट को शो किया आई वाई एन। और थर्ड जो फेज था बी एन, उसके मैंने करंट को कहा आई बी एन, राइट। सो ये जो तीन करंट्स मैंने शो किए, आई आर एन, आई वाई एन एंड आई बी एन, ये इस पेरिफेरी के अंदर है, तो इनको मैंने कहा फेज करंट्स। तो अगर हमसे कहा जाए कि टेल द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन करंट्स एंड द फेज करंट्स फॉर अ स्टार कनेक्शन, तो हम इस सर्किट से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां ध्यान दें, ये जो करंट है आई आर, इट कम्स टू दिस पॉइंट आर और फिर ये यहां जा रहा है, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि जो चीज यहां पर लाइन करंट है वही चीज यहां पर फेज करंट है, यानी कि आई आर जो है दैट इज एज गुड एज आई आर एन। सिमिलरली आई बी जो है दैट इज आई एज गुड एज आई बी एन, एंड आई वाई जो है दैट इज एज गुड एज आई वाई एन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है फॉर अ स्टार कनेक्शन, line current is equal to the phase current, right। तो अगर लाइन करंट का आरएमएस वैल्यू कैपिटल आई एल है, तो फेज करंट की जो आरएमएस वैल्यू होगी अगर वो कैपिटल आई पी है, तो both of them will be equal, right। So now let us see what happens to the voltage. So again we are discussing the case of star connection. So मैंने यहां पर स्टार कनेक्शन में फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, this can be a source or it can be a load. This is valid for both, right। So मैंने स्टार कनेक्शन ड्रॉ किया, I'm marking these points R, Y, B, and this is the common point and this is the neutral. तो अगर हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंसेस को मार्क करें, so I am drawing this periphery here, तो हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें दो तरह के दिखेंगे, एक लाइन वोल्टेजेस और एक फेज वोल्टेजेस, राइट। सो let us draw the potential differences here. इस पेरिफेरी के बाहर मैंने तीन पॉइंट्स यहां पर आइडेंटिफाई करे, राइट। सो एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये दो पॉइंट्स के बीच में, और एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये दो पॉइंट के बीच में, राइट। सो वी विल हैव थ्री लाइन वोल्टेजेस, तो उनको हम मार्क कर लेते हैं। एक होगा आर और वाई के बीच में, राइट। सो ये जो वाई वाला पॉइंट है उसको मैं उस तरफ एरो हेड बना रहा हूं, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इट विल कीप चेंजिंग इट्स पोलैरिटी, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एज अ फेजर मैंने यहां पर एरो हेड और टेल मार्क किया, तो आई कॉल दिस वोल्टेज एज वी आर वाई। ओके, नाउ बिटवीन this y and b there is a potential difference. So ये जो मैंने एरो हेड बनाया ये मैंने b की तरफ बनाया और इसको मैं कह रहा हूं v,
YB, राइट। तो ये दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है। तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस R और B के बीच में है। सो आई एम कॉलिंग इट VBR, sorry, this is VBR, राइट। सो इसका एरो हेड जो है ये मैंने इधर बनाया आर की तरफ। मैंने यहाँ पर ये लॉजिक क्या लगा है, मैंने ये देखा कि ये जो हम सीक्वेंस जो फॉलो कर रहे हैं दैट इज RYB, तो मैंने पहले लिया RY, फिर मैंने लिया YB, फिर मैंने लिया BR, राइट। तो ये तीन वोल्टेजेस मैंने बनाए हैं, VRY, VYB एंड VBR। ये जो है ये किस, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम लाइन वोल्टेजेस ऑफ दिस स्टार कनेक्शन कहेंगे। These are all line voltages, right? जब हम इस पेरिफेरी के अंदर जो वोल्टेजेस है उनको जब हम देखें तो उनको हम फेज वोल्टेजेस कहेंगे, राइट। सो R और N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक साइनसॉइडल वोल्टेज है। स्टिल फॉर आई एम रिप्रेजेंटिंग देम एज फेजर्स, सो मैं एरो हेड और टेल से इनको शो कर रहा हूं यहाँ पर। सो दिस वोल्टेज आई एम कॉलिंग इट VRN, राइट। सिमिलरली ये वाला जो वोल्टेज है दूसरे फेज का उसको मैं कह रहा हूं VYN, और जो थर्ड वोल्टेज है B और N के बीच का इसको मैं कह रहा हूं VBN। तो यहां पर जो मैंने तीन वोल्टेजेस दिखाए VRN, VBN और VYN, ये जो तीनों वोल्टेजेस हैं दे आर द फेज वोल्टेजेस, राइट। तो यहां पर एक स्टार कनेक्शन के लिए मैंने लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस शो किए हैं। Now we are required to find the relationship between the line voltages and phase voltages. Okay. So I am assuming that I know the phase voltages. So मैं इन phase voltages को ले लेता हूँ VP angle 0 degrees. VP is the RMS value of the first phase VRN. तो VYN जो होगा उसकी RMS वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, लेकिन फेज एंगल कितना होगा, -120 डिग्रीज होगा। और VBN जो होगा उसके जो RMS वैल्यू होगी वो सेम रहेगी VP, लेकिन जो फेज एंगल होगा वो +120 डिग्रीज होगा, राइट। तो मैंने फेज वोल्टेजेस को इस तरह से डिफाइन कर लिया। लेट अस फाइंड आउट द लाइन वोल्टेजेस। अब लाइन वोल्टेजेस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, लाइन वोल्टेजेस को कैलकुलेट करने के लिए हम KVL का यूज कर सकते हैं, राइट। सो इफ यू स्टार्ट let us calculate the line voltage VRY, okay। तो मेरा इंटरेस्ट है यहां से मैंने ये वाला एक लूप ले लिया, जहां जहां मैंने एरो हेड बनाया था उसको अगर हम हायर पोटेंशियल मान लें और जहां जहां टेल था उसको लोअर पोटेंशियल मान लें, तो वी कैन राइट a KVL equation because all the three voltages are shown here, right। So starting from this point R, I can write plus VRN, then minus VYN, and then plus VRY equals 0, right? So the line voltage VRY can be expressed in terms of phase voltages as VYN minus VRN, right? Similarly, you can represent other line voltages as VYB, it will be equal to VBN minus VYN, and VBR will be equal to VRN minus VBN. Let us calculate the RMS values also. So VRY is equal to VYN minus
VRN, and we have already defined VYN and VRN here. So VYN is equal to VP angle minus 120 degrees, and VRN is VP angle 0 degrees, right? So this is the polar representation of complex numbers. So I take this VP as common here. So this will be 1 angle minus 120 degrees minus 1 angle 0 degrees. So if I open it up, or if I directly use calculator to solve it, so this will be 1 into cos of minus 120 degrees plus j 1 sine of minus 120 degrees, right? And 1 angle 0 will be 1 into cos 0 plus 1 into sine 0 multiplied with j, right? So here we have, if we solve it further, we can use calculator to directly calculate the final value in terms of its polar form, and it will come out to be equal to this complex number in its polar form will come out to be equal to root 3 angle minus 150 degrees, right? So this is root 3 VP minus 150 degrees. And if you compare it with the standard form, you can write this line voltage VRY as VL. Here VL is the RMS value of the line voltage, and the phase angle is minus 150 degrees. So VL here is equal to root 3 VP, which means that the line voltage is root 3 times the phase voltage. So this is an important relationship for a star connection. The line voltage is equal to root 3 times the phase voltage. Extremely important relationship. फेज एंगल का हम रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं अगर हम तीन लाइन वोल्टेजेस को जब हम कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखे थे, यहाँ पर इन दो एक्सप्रेशंस को भी हम यूज करते हुए जब हम लाइन वोल्टेजेस के लिए एक्सप्रेशंस लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो आरएमएस वैल्यू आ रही है लाइन वोल्टेज की, दैट विल कम आउट टू बी रूट 3 टाइम्स वीपी, राइट? और एंगल्स देखिए, यहाँ पर एक एंगल आया माइनस 150 डिग्रीज, तो जो बाकी दो एंगल्स आएंगे वो इससे 120 डिग्री शिफ्टेड ही आएंगे। तो इसका एक तो आप उस तरीके से आप कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम एक फेजर डायग्राम बनाएं। दिस इज ओमेगा। जो तीन फेज वोल्टेजेस थे वो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूं। एक फेज वोल्टेज हमारे पास था, दिस वाज वी आर एन। एक फेज वोल्टेज इससे 120 डिग्री शिफ्टेड था, दिस वाज वी वाई एन। और थर्ड फेज वोल्टेज जो था वो और 120 डिग्री फेज शिफ्टेड था, दिस वाज वी बी एन। तो ये मैंने ब्लैक कलर से जो बनाए हैं तीन फेज वोल्टेजेस हैं, इनके आरएमएस वैल्यूज इक्वल है, सो द लेंथ्स ऑफ दीज फेजर्स दे आर इक्वल, राइट? जब हम लाइन वोल्टेज हम बना रहे थे तो हमने देखा कि जो आर वाई है दैट इज इक्वल टू वी वाई एन माइनस वी आर एन, राइट? सो दिस कुड हैव बीन रिटन एज वी वाई एन प्लस माइनस वी आर एन। तो उस चीज को हम यहाँ पर कैसे शो करेंगे? दिस इज वी वाई एन और इसमें हमें ऐड करना है माइनस वी आर एन। सो अगर वी आर एन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो माइनस वी आर एन जो होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो ये जो सॉलिड लाइन मैंने बनाई है, दिस विल बी इक्वल टू वी आर वाई, राइट? और इसको हम देखेंगे कि ये एंगल जो बन रहा है ये माइनस 150 डिग्रीज बन रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वी वाई एन के साथ इसका जो एंगल बनेगा दैट विल बी 30 डिग्रीज। और लेंथ के टर्म्स में आप देखें कि ये जो ब्लैक कलर से मैंने जो फेजर्स बनाए थे उनसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रूट 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज वोल्टेजेस, राइट? सो बाकी के दो लाइन वोल्टेजेस भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से हमने देखा कि वी वाई बी जो है दैट इज द
difference between bn and yn, right? So bn जो है वो यहाँ पर है, माइनस वी वाई एन जो होगा वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस विल बी माइनस वी वाई एन, और इनका जो सम होगा उसको जब हम पैरेललोग्राम लॉ से बनाएंगे तो वो इस तरह से आएगा, राइट? सो ये जो मैंने वोल्टेज बनाया, this was the difference between bn and yn, and this is v yb, राइट? और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये 90 डिग्रीज पर है, यानी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, और बी एन के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्रीज का बना रहा है। इसी तरह से जब हम थर्ड फेजर जब हम बनाएंगे लाइन वोल्टेज का, तो वो यहां कहीं पर आएगा, राइट? एंड दिस वाज VBR, और ये RN के साथ जो एंगल बनाएगा ये 30 डिग्रीज का बनाएगा। तो जो लाइन वोल्टेजेस हैं दे, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो फेज वोल्टेज के कंपैरिजन में √3 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी RMS वैल्यू ऑफ द लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज। दिस इज फॉर अ स्टार कनेक्शन। और जो रिस्पेक्टिव जो फेज वोल्टेजेस हैं उनके साथ जो एंगल्स बनेंगे वो 30 डिग्रीज पे होंगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ऐसे relationships we are going to calculate for delta connection also, but that will do in the next class.